अब हम डिटेल में थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी इज पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इट इज नॉट कम फ्रॉम समवेयर एल्स, वो कहीं और से नहीं आया है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही फर्दर एक्सटेंशन है, जिसको कृष्णमूर्ति जी ने डिटेल में स्टडी किया। कृष्णमूर्ति जी ही स्टडीड इन मोर डिटेल, he understood the Vedic astrology in a much better way, and added some maths, more maths, he divided, subtracted, multiplied something and came out with this KP astrology. Okay, KP astrology में क्या है, it is more organized, more structured. ये क्या है, organized है, structured है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है, फ्री फ्लो क्यों, D1 से D60 चार्ट है, तो यू कैन ओपन विथ एनी चार्ट, यू कैन स्टार्ट रीडिंग विथ एनी चार्ट, तो स्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड है, कि हम राशि चार्ट और कस्प चार्ट, ये दो चार्ट, इसके बाहर कहीं नहीं जाते हैं, उसी में हम पूरा हमारे एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, वी स्टार्ट फ्रॉम द हाउस स्टार्टिंग, व्हिच इज कॉल्ड एज भाव आरंभ। भाव आरंभ से हम केपी एस्ट्रोलॉजी में हमारे हाउस को समझने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और भाव आरंभ मींस हाउस बिगनिंग डिग्रीज वी टेक इनटू कंसिडरेशन। But the same thing, if I talk about Vedic astrology, it is Bhav Madhya. It is called as middle of the house. We see or calculate or understand the degrees from middle of the house. It is called as Bhav Madhya. Bhav Madhya in Vedic astrology. Again talking about KP astrology, there are easily understandable concepts, which are important. In Vedic, there are yoga combinations. There are yoga combinations. In KP, what we have very important thing, very important thing is house grouping for life events, जैसे marriage है, child birth है, buying a property, buying a vehicle, lot of events about our life, job, service, business, तो हर एक को grouping of houses दिया गया है, तो वो easily understandable है कि ये group of houses अगर operate हो रहे हैं, कहीं पे वो दिख रहे हैं हमारे chart में, हमारे दशा अंतर दशा में, तो ये operate हो रहे हैं, there are choices available, कि जहां पे वो जो इवेंट है लाइफ में घटित हो सकता है, दैट इवेंट, दैट ग्रुप ऑफ हाउसेस once they get operated, through though being coming up in dasa, antardasa, mahadasa, that event of life may happen, can happen, we have a lot of choices, chances available. Okay, and same thing in Vedic, it is understood through yogas, through planet combinations and lot of other things, but in detail, also in detail in Vedic astrology. But here it becomes very easy, as group of houses are known, group of houses that totally are against of that event are known, and easily we can see those in numbers. Okay, here a very big concept, a very important concept that Krishnamurti ji has given us is about ruling planets in our KP astrology. KP astrology में ruling planets पे बहुत ही जोर देते हैं हम, we take a lot of importance, we give a lot of importance to ruling planets. What are ruling planets? We all will study in our actual course, we will study that कि ruling planet क्या है. Ruling planet, जो planet आज अभी rule कर रहे हैं, that is ruling now, this time, जब यहाँ पे हम 11 बजे अभी हम लोग सब इकट्ठा हुए, at this time period where we all have come together, there are some planets that are ruling, so that are important. Why those planets are ruling now, how they are ruling, who they are, and how it becomes important, all we will understand that. Whereas in Vedic, it's all about uch neech, about exaltation, debilitation, my friend planets, my enemy planets, where I'm sitting, where are my rashis and all those things. Okay, in KP astrology, now I'm talking again in detail about KP astrology. Then here there is horary astrology that is given, even that is a prashna kundli that is available in Vedic, but here a systematic approach again here of horary astrology, where we have a table chart of 1 to 249 numbers, 1 एक नंबर से लेके 249 नंबर्स के हमारे टेबल्स हैं, जिसको हम वो नंबर्स को होरारी एस्ट्रोलॉजी में पिकअप करके हम हमारे क्वेश्चंस आंसर्स को इजीली वहां पे चेक कर सकते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर लाइफ इवेंट्स के, इलेक्ट्रिसिटी अभी गई, we can pick up from 1 to 249 and understand कब मेरी इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी मेरे अराउंड सराउंडिंग में, मेरे घर पे, या कुछ चीज खो गई है, something is lost, we can make a chart, make a seed number from 1 to 249. उस चार्ट को ओपन करके हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कब, जब अगर वो इवेंट आज के दिन में हो सकती है
तो इमीडिएट वे से हम उस चीज को समझेंगे कि कौन से नक्षत्र में, कौन से सबलॉर्ड में वो चीज हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, whether it will happen or not happen. And there are events of life which may happen over a week of time, over a month of time, or over a year of time. Then accordingly we will read that same chart in a manner where it will give us a brief idea about a event happening either now or a event happening in a later period of a time, maybe in a month or a year time. So a different approach, a different way is applied through the same horary astrology or our natal chart. And always, many times, how we use this entire subject of KP astrology is that we have a natal chart, we understand whether the event is promised in my chart, which is easily learned, easily understood, that promise is there or not. And once we know, जैसे हमको पता चलता है कि हाँ प्रॉमिस है मैरिज का, स्टडीज का, हायर स्टडीज का, अब्रॉड जाने का, अलग अलग एरियाज ऑफ आवर लाइफ, देन इवन विद होरारी एस्ट्रोलॉजी हम चॉइसेस, चांसेस को देख सकते हैं. जैसे मैरिज की बात करें तो देयर आर मेनी, वी मे गेट अपॉर्चुनिटीज, वी मे गेट ट्राइब्स एंड ग्रुप्स हॉरोस्कोप. तो हम ये होरारी एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं कि किसका मैं चॉइस करूं विदाउट ओपनिंग देयर चार्ट इनिशियली, विदाउट उन चार्ट्स को ओपन किए. होरारी एस्ट्रोलॉजी से पहले हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये 5 चार्ट 10 चार्ट मेरे पास आए हैं तो इसमें से मैं कौन से चार्ट को ओपन करूं, इसमें से मैं कौन से चार्ट को ओपन करूं. तो एक नंबर से 249 नंबर के बीच में अलग अलग नंबर्स देके उन चार्ट्स को हम ये देख सकते हैं इनिशियली विदाउट ओपनिंग दोस चार्ट कि कौन सा चार्ट मेरे लिए अच्छा है, फिर भी उसी को मैं ओपन करूं. क्यों मैं सब चार्ट को ओपन करूं बिना वजह. सो केपी एस्ट्रोलॉजी में हमको ये होरारी एस्ट्रोलॉजी से ये इजी हो जाता है. इट बिकम्स वेरी इजी दैट विद केपी एस्ट्रोलॉजी होरारी 1 to 249 नंबर्स कि हम अलग अलग चार्ट्स को अलग अलग नंबर्स देके उससे उस चार्ट को ओपन करके पहले वो समझ ले कि वेदर ये चार्ट ओपन करना मेरे लिए अच्छा है, वो मुझे पॉजिटिव हाउसेस दिखा रहा है क्या. यस, अगर वो पॉजिटिव हाउसेस दिखा रहा है, I can go ahead now, open the chart, study that person in more detail. तो वैसे ही हम वैदिक में भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो अप्रोच है वो इजी है, फास्ट है. ओके, सो आगे हम देखते हैं और क्या इसमें हम डिफरेंसेस ला सकते हैं या समझ सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम प्लेनेट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं. और केपी एस्ट्रोलॉजी में हम नक्षत्र और सबलॉर्ड उस लेवल पे जाके हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें डिविजन्स है. केपी एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास डिविजन्स है, कस्पल सबलॉर्ड्स के डिविजन्स है, प्लैनेट्स के डिविजन्स है, जो हम सबलॉर्ड से समझते हैं, सबलॉर्ड से. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ब्रॉड डिवीजन है, D1 D60 चार्ट, और उसमें फिर इंटरप्रिटेशन के ब्रॉड डिविजन्स है. यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे हमारे लाइफ की हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वैसे हम यहाँ पे प्लैनेट्स की स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस स्क्रिप्ट को रीड करते हैं. वी ट्राई टू इंटरप्रेट दैट स्क्रिप्ट. ओके, ऐसे यहाँ पे कुछ भी वैदिक में ऐसा कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है. हम जनरल सिग्निफिकेशंस पढ़ेंगे हाउस के, प्लैनेट्स के, और उसके बेस पे हम करते हैं, जो हम यहाँ पे भी स्टडी करते हैं. पर उस स्क्रिप्ट के कारण इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वो प्लैनेट मुझे क्या देख सकता है, व्हाट दैट प्लैनेट कैन गिव मी. सो वी रीड द स्क्रिप्ट, we understand very easily through KP astrology by reading that script of that planet. Okay, then वहां पे और क्या है, और क्या है, प्लेसिडस हाउस सिस्टम. केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लेसिडस हाउस सिस्टम है जो एक यूनिक बनाता है केपी एस्ट्रोलॉजी को. केपी एस्ट्रोलॉजी को यूनिक बनाता है बिकॉज ऑफ प्लेसिडस हाउस सिस्टम. जो वैदिक में श्रीपति हाउस सिस्टम है, जहां पे हर हाउस को वो लोग इक्वल डिविजन्स करते हैं. दे डू equal divisions of house system in our Vedic astrology, whereas here it gives a unique opportunity, because of Placidus house system, कि हम वो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे अभी कोई चार्ट को ओपन करता हूँ इंडिया में, उसी टाइम पे अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ कोई भी फॉरेन कंट्री में या इवन इंडिया में, समझो मुंबई में और समझो कलकत्ता में और दिल्ली में और हैदराबाद में, तो वो चार्ट उसी समय के चार्ट में कुछ डिफरेंसेस आएंगे, कुछ डिफरेंसेस हाउस में ही आ जाएंगे, प्लैनेट्स के बदले हाउस में ही आ जाएंगे, जो उसको यूनिक बना देगा, व्हिच विल मेक दैट चार्ट यूनिक. तो इवन आउट ऑफ कंट्री की मैं बात करूं तो हाउस डिवीजन में ही फर्क पड़ जाता है. द एंटायर डिवीजन ओनली चेंजेस
if I am, in the globe, in India, near equator or above equator or below equator or a totally different country or a different place. So this Placidus house systems, brings all that additional, total difference in two charts at that same time, because of different location on the earth, different location of the earth. Whereas in Sripati, that doesn't happen, because equal house division is given. Okay, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे केपी सिस्टम में हम फॉलो करते हैं. और Placidus house system, of course, all these house systems are easily available, where if people in Vedic want to also use can, but normal what I'm giving here is, this is what is normally followed. ये normally follow किया जाता है. Okay, people can raise hands, or if they have their questions and all, write them in chat box. And also, as once I complete short presentation that for what I am here today, I will take up all people who have raised hands, all those who have questions. Okay, यहाँ पे हम योगास की बात नहीं करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, जो हम बहुत डिटेल में पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में there are thousands and thousands of yogas, and therefore it takes many years, क्योंकि हमको उनको याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है. यहाँ पे कुछ सिस्टम है, कुछ सिस्टमेटिक अप्रोच है, उसी को अगर हमने समझ लिया केपी एस्ट्रोलॉजी में, it becomes easy. Few systems, few rules, if you know in KP astrology, it becomes very easy to understand KP astrology and start working with any chart. But यहाँ पे वैदिक में there are thousands of combinations, yogas that we have to finally mug up, you can say. उनको या तो याद रखने पड़ते हैं ताकि हम किसी भी चार्ट को अच्छी तरह से देख सकें. तो ऐसे कोई योगास हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, जैसे परिवर्तन योगा, नप्सा योगास, there are so many different types of yogas. Of course, there is no divisional chart system in KP astrology. हमारे KP astrology में we don't have any divisional charts, only we have Rashi chart and Kaspa chart. But in Vedic, that is Vedic का अपना ये है कि there is D1 to D60 charts, D1 से D60 charts हैं, जो यहाँ पे नहीं है. पर वैदिक में फिर सबलॉट डिवीजन जैसी सिस्टम नहीं है जो हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में है. और ये भी वन ऑफ द बैकबोन्स है, जैसे रूलिंग प्लैनेट, प्लेसिडस हाउस सिस्टम, नक्षत्र का यूज, सबलॉट का डिविजन्स, these are all the backbones of KP astrology. Whereas yoga combinations, thousands of yogas, Sripati house system, D1 to D60 charts, ये सब है हमारे वैदिक में. वैदिक का फाउंडेशन इनसे स्ट्रॉन्ग होता है. केपी का फाउंडेशन हमारे subplot system, ruling planet system, about the understanding the, what you can say, the grouping of houses, जो हमारे grouping system है पूरा. फिर पूरा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें हम पूरा हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं व्हेन कैन एन इवेंट फाइनली हैपन, वेदर इट इज प्रॉमिस्ड. ये सब हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में है. केपी एस्ट्रोलॉजी हैज कम फ्रॉम वैदिक and it has come from nakshatra system or the stellar system. जो stellar astrology का जो सिस्टम है, उसी से पूरा केपी एस्ट्रोलॉजी आया है. इवन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है, उसका भी वो पार्ट हम कह सकते हैं. स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी का काफी चीजों को मिक्स एंड मैच करके पूरा एक अच्छा सब्जेक्ट कृष्णमूर्ति जी ने लेके आए हैं. एक ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, जो इजी कर देता है हमारे को एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए. वी हैव बीन रनिंग दिस कोर्सेज, एंड whoever have participated learn within few weeks, 3 to 4 weeks, 5 weeks time, they have been able to interpret their own charts and their family members, friends and all that. तो इसलिए वो इजी हो जाता है. जबकि पाराशरी एस्ट्रोलॉजी it takes time, 6 months, 12 months, 2 years minimum, that I would say minimum, but actually it takes even more time. Actually it takes even more time. ये काफी साल लगते हैं, क्योंकि उसमें काफी सिस्टम्स हैं, काफी अप्रोचेस हैं, काफी चार्ट्स हैं जो हमको समझने पड़ते हैं. तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पराशर एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी. ओनली द थिंग इज इट टेक्स टाइम टू मास्टर, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड. केपी एस्ट्रोलॉजी उस इन दैट वे सेंस इट इज वेरी इजी.